Hello, good morning. Today we will discuss the following two topics. That is a brief introduction to the vectors and Coulomb's law in vector form. Okay? Say this is a position vector, OP vector. The coordinate of point P is given x, y and z. We want to represent this R vector in terms of x, y and z. So what we say that R vector is equal to I cap x plus j cap y plus k cap z. If you want to know its magnitude, that is from here to here this distance अगर हम जानना चाहते हैं, this OP vector का magnitude, R vector का magnitude, जिसको हम R भी कह सकते हैं, that is under root x square plus y square plus z square. This is a blending vector. Simply I am repeating this one. R cap. What is R cap? R cap is a unit vector in the direction of R vector. This R cap, you can say that it is R vector by its magnitude. That you can say R vector by its magnitude. R vector, that is I cap x plus j cap y plus k cap z divided by its magnitude, that is x square plus y square plus z square. That R cap, you can separate this term as I cap or x by under root x square plus y square plus z square I cap plus y by under root x square plus y square plus z square into j cap plus z by under root x square plus y square plus z square into k. Clear? Clear? With it? Say addition of two vectors using parallelogram law. Say you have two vectors. Say this is F1 vector, say this is F2 vector acting at an angle alpha. Say this is represented by OA vector, say this is represented by OP vector. Complete the parallelogram. This diagonal passing through the intersection will be the resultant. Say it is F vector, that is the resultant of F1 vector and F2 vector. Say this resulting vector makes an angle beta with F1 vector. So let us consider this as the first vector, this as the second vector. Now the different formulas. The resultant, magnitude of the resultant, that you can say under root F1 square plus F2 square plus twice F1 F2 cos alpha. The direction of this vector with respect to F1 vector, there is beta you want to know. So beta will recall like this: tan inverse magnitude of second vector, sine of the included angles. This alpha is said to be the included angle, this angle between these two vectors, divided by magnitude of first vector plus magnitude of second vector cosine of the included angle. So now you know its magnitude, you know its direction with respect to F1 vector. Now some cases, special cases.
say the magnitude of f1 vector and the magnitude of f2 vector are same. If the magnitude of these two vectors are same, then this direction beta will be how much? Here will say x sin alpha, x plus x cos alpha, x cancel out, sin alpha by this one. After solving this, you find that beta is equal to alpha by 2. Meaning thereby, if the magnitude of these two vectors are same, then this resultant vector will bisect this angle. This will be alpha by 2, this will be alpha by 2. Now, suppose the magnitude of f1 vector, magnitude of f2 vector are same and the included angle is 120 degree. Then what you find that the magnitude of this resulting vector will be equal to magnitude of either vectors. How? Say it is x, say it is x, say it is x, it is x. X square plus x square, 2x square plus 2x square cos 120. Cos 120 that you know minus half. So it is coming. And what will be the alpha? Alpha will be 60 degree. If you recall this, sorry, alpha is beta. Beta will be 60 degree, 120 by 2. So remember, if the magnitude of these two vectors are same and this angle is 120 degree, then the resulting vector will be, the magnitude of resulting vector will be equal to magnitude of other vectors, and these will bisect this angle, that is, this will be 60, it will be 60. Is that clear? Yes. Say triangle law. Triangle law. Say this is f1 vector. Say this is f2 vector. Say this is f1 vector. Say this is f2 vector. If the two vectors are represented like this in same order, then the third side taken in opposite order will represent the resultant. Here in this diagram, this is alpha and this is beta. You will get the same result, that is f will be under root f1 square plus f2 square plus twice f1 f2 cos alpha, an expression for beta. Here again this is the first vector and this is the second vector. We call tan inverse magnitude of second vector sine of the included angle by magnitude of first vector plus magnitude of second vector cosine of the included angle. This is your triangle law. That is, if the given two vectors are taken in same order, then the third side of the triangle taken in opposite order will represent the resultant. And these are the values. Say this is a position vector, R1 vector. The coordinate of this point is say x1, y1, z1.
say this is R2 vector. The coordinate of this point is x2, y2, z2. Say we want to know this vector. So you can apply the triangle law. This vector plus this vector is equal to this vector. Let this vector, I am giving the name. Say this is point 1, this is point 2. I am giving the name this vector as R vector 1, 2. A vector in the direction 1, 2. जानना चाहते हैं, इस वेक्टर को जानना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. दैट यू कैन से दैट OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर. OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर. That you can say R1 vector plus R vector 1, 2 is equal to R2 vector. That you can say R vector 1, 2 is equal to R2 vector minus R1 vector. अब हम जानना चाहते हैं in terms of this coordinate. अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं. R2 वेक्टर को हम लोग लिखना चाहेंगे I cap x2 plus j cap y2 plus k cap z2 minus R1 vector I cap x1 plus j cap y1 plus k cap z2. अगर I cap को एक साथ रखा जाए तो x2 minus x1 plus j cap y2 minus y1 plus k cap z2 minus z1, ऐसा कुछ कहेंगे. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? इस मैग्नीट्यूड को अगर मैंने R नाम दिया तो इसको R भी कर सकते हैं. अगर R नाम दिया तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर प्लस z2 minus z1 स्क्वायर. अगर आप जानना चाहते हैं एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन 1 to 2 जानना चाहते हैं, इस यूनिट वेक्टर को जानना चाहते हैं, उसका एक नाम दिया R cap 1. यूनिट वेक्टर को कैप रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग. तो R cap 1, 2 कैसे जानेंगे? R वेक्टर 1, 2 को डिवाइड कर देंगे उस मैग्नीट्यूड से. आपको R वेक्टर 1, 2 भी पता है और R वेक्टर 1, 2 का मैग्नीट्यूड भी पता है, तो आप इसको यहाँ लिख देंगे I cap x2 minus x1 plus j cap y2 minus y1 plus k cap z2 minus z1 divided by x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे जैसे कि हमने यूनिट वेक्टर में आपको सिखाया. ये बात समझ में कोई दिक्कत? मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर दूँ. दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. सो दिस वेक्टर इज नथिंग बट दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर. इन दो वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं आपको पता है. डिफरेंस किया, मैग्नीट्यूड निकाला, यूनिट वेक्टर निकाला. सिमिलरली अगर आप जानना चाहते हो QP वेक्टर जानना चाहते हो, उसका क्या नाम दोगे? उस QP वेक्टर का नाम दे देना R वेक्टर 2, 1. जब R वेक्टर 2, 1 होगा, इसको जानना चाहोगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कर दोगे, फिर उसी ढंग से आगे बढ़ जाओगे. तो ये जो टर्म्स होगा इंटरचेंज कर जाएगा. आई बात समझ में? यस. बच्चों कहीं भी कोई दिक्कत होगा पूछो. अब आता है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर जिसको हम लोग लामीज थ्योरम के नाम से जानते हैं. लामीज थ्योरम क्या कहता है? Suppose an object
acted upon three different forces. Say this is F1 vector, say this is F2 vector, say this is F3 vector. अगर इन तीनों फोर्सेस के कारण ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा? Say this angle is alpha, say this angle is beta, say this angle is, और मैं नाम को चेंज करता हूँ, say it is alpha, say it is beta, say it is gamma. अगर इन तीनों फोर्सेस के कारण ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं F1 by sin alpha, इसके मैग्नीट्यूड F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma. F1 by sin alpha, F2 by sin beta, F3 by sin gamma. ऐसा कब होगा? If the resulting force on the object is zero. That is, the object is in equilibrium. तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं। अब मान लो इसको हम एक ट्रायंगल में सेट करना चाहते हैं। ये F1 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है और ये F3 वेक्टर है। तुम क्या देख रहे हो? ये तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हुआ? जीरो हुआ। अब समझते हैं अल्फा बीटा गामा कौन कौन है। अल्फा क्या है? F2 वेक्टर और F3 वेक्टर के बीच का एंगल। ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है, इसके बीच का एंगल ये अल्फा है। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। एंगल बिटवीन F1 वेक्टर ये F3 वेक्टर इधर शिफ्ट करोगे, ये F3 वेक्टर हुआ, F1 वेक्टर हुआ, तो ये एंगल हुआ बीटा। गामा क्या है? गामा क्या है? गामा इज द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। अगर इस वेक्टर को हम आगे की ओर शिफ्ट करते हैं, F1 वेक्टर और ये F2 वेक्टर, F1 वेक्टर हुआ, F2 ये हुआ। ठीक है, मान लो मैं कुछ नाम दे देता हूँ, A B C। तब क्या पाओगे? इसी को जब हम साइड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं F1 by AC is equal to F2 by AB is equal to F3 by BC। इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ रिजल्ट पाएंगे। आपको याद रखने के लिए द रेशियो ऑफ फोर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया। आई बात समझ में? मैंने इस वेक्टर का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया सो दैट आपको समझने में आसानी हो। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज मान लो कोई कंडीशन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट Q1 और Q2 क्या है? 0 से बड़ा है। इससे आप क्या समझोगे बेटा?
इससे हम ये समझ सकते हैं या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा या दोनों चार्ज नेगेटिव होगा, चार्जेस आर सिमिलर। अगर ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा जो 0 से बड़ा होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ ये भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं चार्जेस आर सिमिलर, चार्जेस आर सिमिलर। If the charges are similar, what you know that they will repel each other. They will repel each other along the line joining the two charges, because you know that Coulomb force is a central force as well as a Newtonian force. Say this is Q1, say this is Q2. Let these two are separated by distance r. तो Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा, Q2 Q1 को इधर रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम दिया F वेक्टर 1 2। F वेक्टर 1 2 मतलब द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 Q2 Q2। ये Q1 इस Q2 को इधर रिपेल करेगा, इसका नाम देंगे F वेक्टर 1। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 due to Q1। आई का समझ में? इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर का क्या नाम देंगे? उसका नाम देंगे r कैप 1 2। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन 1 2 2। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका क्या नाम देंगे? r कैप 2 1। ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन 2 2 1। अब हम इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे उस यूनिट वेक्टर के साथ जिस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही हो जो इस फोर्स का डायरेक्शन है। इसके डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? ये वाला यूनिट वेक्टर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे r के 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इसको कैसे लिखते हैं? कूलम्ब्स लॉ टेल्स अबाउट the magnitude of force between the two point charges, that is 1 by 4 pi epsilon naught। अगर वैक्यूम है तो ऐसा कुछ लिखेंगे, अगर मीडियम हुआ तो यहाँ epsilon naught भी जोड़ देंगे, into magnitude of Q1 magnitude of Q2 by r square। This we have done in the previous class। इसको मल्टीप्लाई करेंगे r कैप 1 से। वेक्टर फॉर्म। अब मान लो तुम लिखना चाहते हो F वेक्टर 2 1 लिखना चाहते हो, बोलो क्या लिखोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर 2, इसका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम ही बताओ? तो सर इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? r कैप 1 r कैप 1। जहां तक इस मैग्नीट्यूड का सवाल है, ये मैग्नीट्यूड इसी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ में आपने क्या सीखा है? इट इज अ न्यूटोनियन फोर्स। एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है 1 by 4 pi epsilon naught mod Q1 mod Q2 by r square multiplied by r cap 1, ऐसा कुछ कहेंगे हम लोग। अब देखो ये यूनिट वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप कह सकते हो r cap 1 2 is equal to negative of r cap 2 1, or you may say r cap 2 1 is equal to negative of r cap 1। अगर ऐसा कुछ कहते हो तो f वेक्टर 2 1 को अगर आप लिखना चाहो फिर से, अगर हम इसको लिखना चाहें r cap 1 2 के बदले हम लिख सकते हैं माइनस r cap 2 1 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 by 4 pi epsilon naught mod Q1 mod Q2 by r square into minus of r cap 2 1, ऐसे कुछ लिखेंगे। ये माइनस जब आगे आ जाएगा, तो क्या इसी फॉर्म में आ गया? इसी फॉर्म में आ गया तो क्या पाया? ये हो गया माइनस f वेक्टर 1 2। तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ किया? यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कूलम्ब फोर्स is a Newtonian force। Coulomb force is a Newtonian force। Coulomb force एक Newtonian force है, ये आपने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अगर चार्जेस
डिसिमिलर होता तो कहाँ कहाँ चेंज होता तो उसको देख लिया जाए। मैं इसी में मिटा मिटा के लिखूंगा सो दैट आपको समझने में आसानी हो। से Q1 Q2 इज लेस देन 0। लेस देन 0 कब होगा? जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई एक, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, नेगेटिव इज लेस देन 0, मतलब चार्जेस आर डिसिमिलर। चार्जेस आर डिसिमिलर। इफ चार्जेस आर डिसिमिलर क्या होगा? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दे विल अट्रैक्ट, ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। So this is your F vector 1 2 and this is your F vector 2 1। नाम तो वही है, फोर्स एक्शन बाय Q1 due to Q2, फोर्स एक्शन बाय Q2 due to Q1। अब देखो क्या होगा, F वेक्टर 1 2 का डायरेक्शन इधर है, F वेक्टर 1 2 का डायरेक्शन इधर है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 की जगह 1 2 लिख देंगे, यहाँ 1 2 लिख देंगे। आई बात समझ में? यस। इसका लिखना चाहते हैं, इसके डायरेक्शन में ये वाला यूनिट वेक्टर है r कैप 2 1 है, तो यहाँ r कैप 2 1 लिख देंगे, r कैप 2 1 लिख देंगे, यहाँ r कैप 2 1 लिख देंगे। अब ये तो आपको पता ही है, जब r कैप 2 1 को लिखना चाहते हैं तो r कैप 2 1 को तो हम माइनस r कैप 1 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस r कैप 1 2 लिख सकते हैं। F वेक्टर 2 1 को ऐसा लिख सकते हैं हम। इस माइनस को जब आगे लाएंगे, इस माइनस को जब आगे लाएंगे तो माइनस F वेक्टर 1 2 हो जाएगा। तो चार्जेस सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, कूलम्ब फोर्स इज ए न्यूटोनियन फोर्स। आई बात समझ में? यस। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? नो। थैंक यू। तो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ? कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। Say this is Q1, say this is Q2, having position vectors R1 vector and R2 vector। अब हम कूलम्ब्स लॉ को लिखना चाहते हैं in terms of this Q1 Q2 R1 vector R2 vector। Say this is R, this distance is R, this R is nothing but it is magnitude of R vector 1 2 or magnitude of R vector 2। F vector 1 को कैसे समझेंगे? इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे उस यूनिट वेक्टर के साथ जिसका डायरेक्शन वही हो जो इस फोर्स का डायरेक्शन हो। इस फोर्स के डायरेक्शन में r कैप 2 1 r कैप 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कूलम्ब्स लॉ से मैंने लिख लिया, कूलम्ब्स लॉ को मैंने निकाल किया, इसको एज इट इज लिखा। r कैप 2 1 को कह सकते हैं r वेक्टर 2 1 बाय r वेक्टर, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, r इनटू r स्क्वायर को r क्यूब मैंने लिखा। RQ is nothing but it is the magnitude of R vector 2 1 cube। R vector 2 1 आप इसको कहो, R vector 2 1 इसको कहो। This vector plus this vector is equal to this vector, so this vector is nothing but R1 vector minus R2 vector। Force R cap 2 1, R cap R vector 2 1, R vector 2 1, R vector 2 1 इधर है, R vector 2 1 इधर है, R vector this vector plus this vector is this vector। क्या होना चाहिए? R1 vector minus R2 vector होना चाहिए, R1 vector minus R2 vector होना चाहिए, R1 vector minus R2 vector। सिमिलरली अगर आप इसके बारे में सोचना चाहते हो, अब इसको याद कैसे रखेंगे? ये तो याद रखना बहुत आसान है। जब यहाँ कैप नोट रहेगा तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, जब वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को निकाल करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड सिमिलर। F वेक्टर 2 1 का डायरेक्शन इधर है, F वेक्टर 2 1 का डायरेक्शन इधर है। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, इस वेक्टर को कहेंगे R2 माइनस R1, तो यहाँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड की। ऐसा सिंबल नहीं होना चाहिए, मॉड हमेशा स्ट्रेट होता है, मॉड हमेशा स्ट्रेट होता है। आई वाज saying similarly you can describe it for
dissimilar charges also. आपको ये छोटी सी बात याद रखना है. Is that clear? Thank you.